Good morning, students. In the running topic of surface chemistry, today we will discuss about the classification of colloids on the basis of the types of particles of dispersed phase. Before this, we have discussed till the classification of colloids based on the nature of interaction between dispersed phase and the dispersion medium. On the behalf of this, the colloids are of two types, lyophilic as well as lyophobic colloids. उसका डिफरेंस भी हमने देखा था, लास्ट हमने डिफरेंस तक वीडियो में उसमें डिस्कस किया था. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ colloids based on dispersion phase. That is, depending upon the types of the particles of the dispersed phase, the colloids are classified as multimolecular colloids. Second one is macromolecular colloids, and the third one is associated colloids. So let's see what is multimolecular colloids. Multimolecular colloids, when the colloids, they are formed by the aggregation of a large number of atoms or molecules which generally have the diameter in colloids range, that is 1 to 10 to the power 3 nanometer. ठीक है जी. And in these sols, the dispersed phase consists of aggregate of atoms or molecules with molecular size less than 1 nanometer. For example, sol of gold, atom and sulfur molecules. In these colloids, the particles are held together by van der Waals forces and they have usually lyophilic character. इनके अंदर lyophilic character होता है. Now, macromolecular colloids. Second type है आपका macromolecular colloids. Macromolecular colloids, they are the substance having big size molecules called macromolecules, which on dissolutions form size in the colloidal range. Such substances are called macromolecular colloids. And these macromolecules forming the dispersed phase are generally polymers having very high molecular mass. And naturally occurring macromolecules are starch, cellulose, proteins, enzymes, gelatin, etc. And artificial macromolecules are synthetic polymers such as nylon, rubber, plastic, polythene or polystyrene, etc. They have usually lyophobic character. इनके पास जो करेक्टर होता है वो lyophobic करेक्टर होता है. इसके आधार पर भी हम इन दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. एंड दीज सब्सटेंस व्हेन डिजॉल्व इन ए सूटेबल लिक्विड डायरेक्टली फॉर्म द कॉलोइडल सॉल्यूशन. इनको हम डायरेक्ट डिजॉल्व करके ही कॉलोइडल सॉल्यूशन क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं. नाउ थर्ड वन इज एसोसिएटेड कॉलोइड्स. सर्टेन सब्सटेंस व्हेन थर्ड वन इज एसोसिएटेड कॉलोइड्स. These are the substances which on dissolve in a medium behave as normal electrolytes at low concentration but behave as colloidal particles at higher concentrations due to the formation of aggregated particles, and the aggregate particles thus formed are called micelle, and their molecules contain both lyophilic and lyophobic groups. यानी जो एग्रीगेट पार्टिकल्स मिलकर के एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं जिसको मिसेल कहते हैं. मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड कॉलोइड्स आर फॉर्म्ड बाय सोप एंड डिटर्जेंट. मिसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अबव ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर एंड पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑल्सो कॉल्ड क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, CMC. इसके ऊपर जाकर के ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं. एंड दे आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग आयंस. मिसेल में कंटेन एज मैनी एज 100 molecules or more.
इस मिसाइल के एक मिसाइल के अणु के पास 100 मॉलिक्यूल या उससे अधिक मॉलिक्यूल होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम स्टीयरेट, chemical formula is C17H35COO(Na) is a typical example of such type of molecules. And when sodium stearate is dissolved in water, it gives sodium ion and stearate ion. सोडियम स्टीयरेट और सोडियम आयन देता है और क्या देता है, स्टीरेट आयन देता है। एंड द स्टीरेट आयन्स एसोसिएट टू फॉर्म ionic missile of colloidal size. It has long hydrocarbon part of C17H35 radical, which is a lyophobic, and COO minus part which is lyophilic. फिगर के अंदर दिखाया है। In the figure the chain correspond to stearate ion, that is C17H35 COO minus, when the concentration of the solution is below from its CMC 10 to the power -3 mole per liter. It behaves as normal electrolyte, but above this concentration it is aggregated to behave as missile. Now the main functions of soap is to reduce oily and greasy dirt to colloidal particles. क्या बना देता है, emulsion बना लेता है। soap therefore are known as emulsifying agents, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, emulsifying agent भी कहते हैं। some other example of missiles are sodium palmitate, sodium lauryl sulfate जो डिटर्जेंट के अंदर होता है, and cetyl trimethyl ammonium bromide। ठीक है जी, these are the another example of this associated colloid. Now जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स, हम कैसे प्रिपेयर करेंगे कॉलॉइड्स को। तो लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कॉलॉइड्स सॉल्यूशंस, जिनको सोल भी कहते हैं, आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड। सम ऑफ द कॉमन मेथड्स आर प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड्स। पहले देखते हैं लायोफिलिक कॉलॉइड्स को। देन लायोफिलिक कॉलॉइड्स वैसे तो हम उनको प्रिपेयर कर लेते हैं शेकिंग मेथड के द्वारा, ठीक है जी, लायोफिलिक कॉलॉइड्स को शेकिंग मेथड के द्वारा प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ डिस्कस करते हैं आपसे। एंड द लायोफिलिक कॉलॉइड्स हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। Simply mixing the dispersed phase and dispersion medium under ordinary conditions readily forms these colloidal solutions. For example, the substance like gelatin, gum, starch, egg albumin, etc. pass readily into water to give colloidal solution, and they are reversible in nature. These can be precipitated and directly converted into colloidal state. Now, second one is preparation of lyophobic colloids. Now, first method is इसको दो मेथड के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। पहला है आपका डिसइंटीग्रेशन मेथड, डिस्पर्सन मेथड, और दूसरा है एग्रीगेशन मेथड और कंडेंसेशन या केमिकल मेथड। डिस्पर्सन मेथड के अंदर आता है आपका इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, जिसको ब्रीडिंग आर्क मेथड भी कहते हैं, और पेप्टाइजेशन। और दूसरा केमिकल मेथड के अंदर आएगा आपका डबल डिकम्पोजिशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस। तो पहला मेथड है आपका कंडेंसेशन मेथड। क्लियर जी, कंडेंसेशन मेथड के द्वारा हम लायोफोबिक कॉलॉइड्स को फॉर्म कर सकते हैं। इस मेथड के अंदर, इन दिस मेथड, स्मॉलर पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज आर कंडेंस्ड सुटेबल टू बी ऑफ कॉलॉइडल साइज, एंड दिस इज डन बाय द फॉलोइंग मेथड। पहला है आपका ऑक्सीडेशन। The oxidation solution of sulfur can be obtained by bubbling oxygen through a solution of hydrogen sulfide in water. इक्वेशन हो जाएगा आपका 2H2S + O2। कोई भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिखे हुए हैं जैसे HNO3 ब्रोमीन को यूज़ करेंगे और इसको ये चेंज कर देगा किसमें, रिड्यूस कर देगा 2H2O और 2S के अंदर। यानी इससे यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड किसमें रिड्यूस हो रही है, सल्फर के अंदर रिड्यूस हो रही है। एंड द by reduction method, a number of metals such as silver, gold and platinum have been obtained in colloidal state by treating the aqueous solution of their salts with a suitable reducing agent such as formaldehyde, phenylhydrazine, hydrogen peroxide और stannous chloride etc. गोल्ड का दिया है
2AuCl3 plus 3SnCl2, it gives 3SnCl4 plus 2Au. इसके द्वारा हम गोल्ड सॉल्व ऑब्टेन करते हैं. एंड अनदर वन इज 2AuCl3 plus 3HCHO. ठीक है जी, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड को प्रयोग किया प्लस 3H2O. यहाँ भी गोल्ड सॉल्व मिलता है. 2Au प्लस 3HCOH फॉर्मिक एसिड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है. एंड द गोल्ड सॉल्व दस प्रिपेयर्ड हैज़ ए पर्पल कलर एंड इज कॉल्ड पर्पल ऑफ कैसियस. ये पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाई पर्पल ऑफ कैसियस. जो गोल्ड सॉल्व किसके द्वारा, या तो फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा हमें ऑब्टेन होता है और स्टेनस क्लोराइड के द्वारा फॉर्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पर्पल ऑफ कैसियस कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज बाई हाइड्रोलाइसिस. जैसे आयरन क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड या एक्वा सॉल्यूशन लेंगे फेरिक क्लोराइड का, उसको वाटर से ट्रीट करेंगे तो हमें कॉलोइडल सॉल्यूशन मिलेगा किसका, फेरिक हाइड्रोक्साइड का. इक्वेशन होगा आपका FeCl3 प्लस 3H2O, इट गिव्स फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस 3HCl. और इसके ऐसे ही हम दूसरा बना सकते हैं सिलिसिक एसिड सॉल्व. ठीक है जी, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे किसका, सोडियम सिलिकेट का. नेक्स्ट है बाय डबल डिकम्पोजिशन. डबल डिकम्पोजिशन में हम आर्सेनिक सोल ऑब्टेन करते हैं आर्सेनिक ऑक्साइड से AS2O3 प्लस 3H2S. इट गिव्स एक्वा सॉल्यूशन लेंगे यहाँ पर आर्सेनिक ऑक्साइड का, जिसका एक्वा सॉल्यूशन लेंगे सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड का, और इससे हमें ऑब्टेन होगा आर्सेनिक सोल AS2S3 प्लस 3H2O. इक्वेशन है AS2O3 प्लस 3H2S gives AS2S3 plus 3H2. And next one is by excessive cooling. A colloidal solution of ice in an organic solvent like ether or chloroform can be prepared by freezing a solution of water in the solvent. The molecules of water which can no longer be held in solution separated combine to form particles of colloidal size. नेक्स्ट है बाई एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट को बदल कर भी हम कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन कर लेते हैं. एंड द कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस सच एज सल्फर फॉस्फोरस विच आर soluble in alcohol but insoluble in water can be prepared by pouring their alcoholic solution in excess of water. For example, alcoholic solution of sulfur on pouring into water give milky colloidal solution of sulfur. नेक्स्ट मेथड है बाई चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट. ओके, फिजिकल स्टेट को चेंज करके भी कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाया जा सकता है. सोल्स ऑफ सब्सटेंस लाइक मरकरी एंड सल्फर आर प्रिपेयर्ड बाई पासिंग देयर वेपर थ्रू ए कोल्ड वाटर कंटेनिंग ए सुटेबल स्टेबलाइजर सच एज अमोनियम साल्ट और सिट्रेट. नेक्स्ट मेथड है आपका डिस्पर्सन मेथड. सेकेंड मेथड है डिस्पर्सन मेथड. इस मेथड के अंदर जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, उनको हम क्या कर देते हैं, स्मॉलर पार्टिकल के अंदर तोड़ देते हैं. एंड द फॉलोइंग मेथड्स आर एम्प्लॉयड. फर्स्ट वन इज मैकेनिकल डिस्पर्सन. इन दिस मेथड द सब्सटेंस इज फर्स्ट ग्राउंड टू कोर्स पार्टिकल. पहले हम जो सब्सटेंस हो उसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर उसके टुकड़े कर लेते हैं. एंड इट इज़ देन मिक्सड विद द डिस्पर्सन मीडियम टू गेट ए सस्पेंशन. और उसको डिस्पर्सन मीडियम से मिक्स करके एक सस्पेंशन फॉर्म करते हैं. एंड द सस्पेंशन इज़ देन ग्राइंडेड इन कॉलोइडल मिल. और उस सस्पेंशन को कॉलोइडल मिल के अंदर पीस लेते हैं. एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटेलिक डिस्क नियरली touching each other and rotating in opposite direction at a very high speed about 7,000 revolution per minute. And the space between the disc of the mill is so adjusted that coarse suspension is subjected to great shearing force giving rise to a particle of colloidal size. And the colloidal solution of black ink, paint, varnishes, dyes are obtained by this method. यानी कोलोइडल सॉल्यूशन किसका, जो स्याही प्राप्त होती है या पेंट बनता है या वार्निश बनती है या डाई बनती है, वो इस मेथड के द्वारा ही बनाया जाता है. नेक्स्ट मेथड है बाई इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन और ब्रीडिंग आर्क मेथड. दिस मेथड इज यूज टू प्रिपेयर सोल ऑफ प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड. ये चीज़ें आप याद रखेंगे कि पर्टिकुलर किसके द्वारा हम, किस मेथड के द्वारा हम कौन सा
कॉलोइडल सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हैं। एंड द मेटल whose solution is to be prepared is made as two electrodes which emerged in dispersion medium such as water। यहाँ dispersion medium क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, और यहाँ पर जो ये प्लेट्स लगी होती हैं यहाँ पर दो हम क्या लगाते हैं, मेटल इलेक्ट्रोड लगाते हैं, इनके बीच में स्पार्क होता है, आर्क। तो डिस्पर्सन मीडियम इज केप्ट कोलोइडल बाई आइस एंड इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इन जो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं इनके बीच में इलेक्ट्रिक आर्क पैदा होता है एंड द ट्रिमेंडस हीट जनरेट बाय दिस मेथड एंड गिव कोलोइडल सॉल्यूशन। द कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इज स्टेबलाइज्ड बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की थोड़ी सी मात्रा इसके अंदर हम मिलाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ ब्रेडिंग आर्क मेथड के द्वारा जो हम कोलोइडल सॉल्यूशन भी तैयार करते हैं। ठीक है, इस मेथड को हम इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं। यहाँ पर हम गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम के जो है गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम के कोलोइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं। नेक्स्ट मेथड है बाईपेप्टाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ suitable electrolyte is called peptidation, and the electrolyte is used for this purpose is called peptizing agent or stabilizing agent. Cause of peptidation is the adsorption of the ions of the electrolyte by the particles of the precipitate, and the important peptizing agent are sugar, gum, gelatin and electrolytes. These are the important peptizing or stabilizing agent. Now freshly prepared ferric hydroxide can be converted into colloidal state by shaking it with water containing ferric ion or hydroxide ion, ferric chloride और ammonium hydroxide respectively. इक्वेशन है FeOH का होल थ्राइस प्लस FeCl3 इट गिव्स FeOH का होल थ्राइस इंटू Fe की पावर 3 प्लस 3Cl माइनस। ये कॉलोइडल सोल प्राप्त होता है एंड ए स्टेबल solution of stannic oxide is obtained by adding a small amount of dilute HCl to stannic oxide precipitates. Similarly, a colloidal solution of aluminum hydroxide and silver chloride are obtained by treating the corresponding freshly prepared precipitate with very dilute solutions of HCl and AgNO3 और KCl respectively. ठीक है जी। तो ये मेथड हो गए आपके कोलोइडल सॉल्यूशंस के। नाउ प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन बात करते हैं हम। जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनते हैं उनको कैसे प्योर करते हैं, इसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं। पहला मेथड है डायलाइसिस। डायलाइसिस के अंदर द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द particles of colloidal from those of crystalloid by means of diffusion through a suitable membrane is called dialysis, and its principle is based upon the fact that colloidal particles cannot pass through a parchment or cellophane membrane while the ions of the electrolytes can pass through it। यानी आयन तो पास हो जाए पार्चमेंट पेपर से या सेलोफेन पेपर से, आयन तो पास हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स पास हो सकते हैं लेकिन colloidal solutions पास ना हो। and the impurities slowly diffuse out of the bag leaving behind pure colloidal solutions, and the distilled water is changed frequently to avoid accumulation of the crystalloids, otherwise they may start diffusing back into the bag। यानी ये फिर से डिफ्यूज़ होना शुरू कर जाते हैं बैग के अंदर अगर हम यहाँ पर डिस्टिल वाटर क्या बदल रहे हैं। फ्रीक्वेंटली हमें डिस्टिल वाटर को चेंज करते रहना होता है। एंड डायलाइसिस कैन बी यूज फॉर रिमूविंग HCl फ्रॉम द फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। सेकेंड मेथड है आपका इलेक्ट्रोडायलाइसिस। दिस इज द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ डायलाइसिस इज स्लो। जो ऊपर है वो प्रोसेस स्लो होता है। टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन द डायलाइसिस इज कैरिड आउट बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और दिस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायलाइसिस। एंड द इम्पोर्टेंट application of electrodialysis process in the artificial kidney machine used for the purification of blood of the patients whose kidneys have failed to work। यानी इलेक्ट्रोडायलाइसिस हम क्या करते हैं जब डायलाइसिस करते हैं, यानी जो डायलाइसिस वाला प्रिंसिपल है, द आर्टिफिशियल किडनी मशीन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डायलाइसिस।
Third one is ultrafiltration. Soil particle directly pass through the ordinary filter paper because their pores are larger, more than 1 micron, than the size of soil particles less than 200 millimicron. If the pores of the ordinary filter paper are made smaller by soaking the filter paper in a solution of gelatin of collodion and subsequently hardened by soaking in formaldehyde, the treated filter paper may retain colloidal particles and allow the true solution particle to escape. Or such filter paper is known as ultrafilter, and the process of separating colloids by using ultrafilter is known as ultrafiltration. ठीक है जी, ये मेथड हो गया आपका अल्ट्राफिल्ट्रेशन. नेक्स्ट मेथड है अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन. एंड द सोल particles are prevented from setting out under the action of gravity by kinetic impacts of the molecule of the medium. The setting force can be enhanced by using high speed centrifugal machine having 15,000 or more revolutions per minute. Such machine are known as ultra सेंट्रीफ्यूज. इस प्रकार की मशीन को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कहते हैं. नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉलोइडल सॉल्यूशन. फर्स्ट वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है जी, तो ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़. इसमें एक ही वीडियो और आएगा आपका, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं. ठीक है. Okay students, have a nice day to all of you.